Hello guys, welcome back to my channel. This is me Kiran Verma this side. I hope you all are fine and I am fine here too. We are about to discuss a poem, a story from class 10th uh, of Footprints book, and from today I will be uploading the videos of class 10th English, both books, Footprints and First Flight. You just stay tuned to my channels. New videos are coming on the way. Like, share, and subscribe to my channel. We have just finished class 4th English NCRT book, that is Marigold book, and now we are starting class 10th. New videos are there on the channel, and day before yesterday only I uploaded three to four videos of class 4th. Now we will now from now onwards I will be uploading. Uh, it will be like one day it will be Footprints and the another it will be First Flight chapter, है ना. Alternate days I will be uploading both books chapters. You just go through with the playlist. I will be directly uploading with the playlist itself na. So you just stay tuned and just check out my channel daily. Like, share, and subscribe to the channel, and I'm sure it will be very helpful for you guys. You just need to share it to your friends also. There it will help to your friend also. So we are here and we are starting class 10th, mm, for Footprints book, chapter number 1, that is a triumph of surgery. Okay, so this surgery is about a dog named as Tricky, small dog, and his rich mistress, okay, his rich owner. And here the small dog is so much pampered by and overfed by their rich mistress that he falls ill, seriously ill. And then his owner, Mrs. Pomfrey, the owner of the dog named as Mrs. Pomfrey here. So Tricky, the name of the dog is Tricky. So uh, uh, Tricky is now ill here in this story, and his mistress named as Mrs. Pomfrey take him to a veterinary surgeon to cure his illness. And let's see what happens. And the veterinary doctor performs an operation there, and let's see does the Tricky recover from the illness or not. So I think we should start now. So here we are explaining a trump of surgery. Mr. Pomfrey was a rich and emotional lady who has a cute dog Tricky. She loved him so much कि that she always overfeed him. मतलब इतना ज़्यादा प्यार करती है ना वो उससे, कि वो हमेशा उसको है ना, हमेशा जब भी वो होता है ना तो वो हमेशा उसको क्या है कि गलत ओवरफीड कर देती है, मतलब ज़्यादा खाना खिला देती है. Therefore Tricky had put on a lot of weight and hence became lethargic. lethargic. जो ट्रिकी है ना वो बहुत ज़्यादा ही जो है वो अ, इतना ओवर ईटिंग उसको करवा दिया जाता है कि जो ट्रिकी लाथाजिक बन जाता है और बहुत ज़्यादा ही मोटा हो जाता है, ओवरवेट हो जाता है. सो डॉक्टर हैरियट जो हैंगे, उन्हें भी जब ट्रिकी को वो इतना मोटा होते हुए देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं. और वो जो है ट्रिकी के लिए जो है एक प्लान बनाते हैंगे और वो मिसेस फॉम्फ्रे को देते हैं कि इसको इस तरीके से जो है आप फूड प्रोवाइड करिए ऑन अ डेली बेसिस, मतलब एक डाइट रूटीन टाइप देते हैंगे. और फिर मिसेस पॉम्फ्रे जो है, pamphlet that Tricky must undergo for a treatment of the alignment in the hospital. और मिसेस पॉम्फ्रे जो है ना, वो क्या करती हैं कि वो ट्रिकी को क्या करती है कि जब ट्रिकी बहुत ज़्यादा खा लेता है तो वहाँ पे एक डॉक्टर होते हैं, जो डॉक्टर का नाम क्या बताया गया है, डॉक्टर का नाम है डॉक्टर हैरियट. ओके, तो डॉक्टर हैरियट देखते हैं, है ना. दे आर द ग्रीडी डॉग हैड टू compete with the other dogs to get the food, otherwise he had to remain hungry. तो जो डॉक्टर रहते हैं वो डॉक्टर बोलते हैं कि जब आप रोड पर देखोगे, सड़क पर देखोगे तो जो कुत्ते होते हैं वो इधर-उधर भटकते रहते हैं खाने के लिए और बहुत ज़्यादा घूमते फिरते हैंगे, है ना? और जो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब घूमते फिरते हैं और अपना फूड सर्च करने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन ट्रिकी को क्या है कि उसको कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो दिन भर अपने घर में जो है रेस्ट कर रहा होता है। अपनी उनकी जो मिस्ट्रेस है वो उसको तुरंत प्रॉपर मतलब जो है खाना वगैरह टाइम टू टाइम देती है और इतना ज़्यादा दे देती है कभी-कभार कि वो ओवरवेट हो चुका है और
उसके ओवरवेटनेस की वजह से जो है वो यहाँ पर जो है बीमार हो जाता है, इल हो जाता है बहुत ज़्यादा जो है। और डॉक्टर यही बोलता है कि इसे बहुत जल्दी अपना वज़न घटाने की ज़रूरत है, वरना जो ट्रिकी है वो जो है वो ज़्यादा बीमार हो जाएगा। और वो बीमार हो भी जाता है ज़्यादा, जो मिसेस पोम्फ्रे है वो तो भी डॉक्टर की बात नहीं सुनती है, और फिर भी जो है ट्रिकी को है वो ओवर ईटिंग ही करवाती रहती है बार-बार। और डॉक्टर ये भी बोलते हैं कि जो ट्रिकी है उसको बहुत ज़्यादा लग्ज़ूरियस लाइफ़ आप लोगों ने दे रखीगी, उसे थोड़ा घूमने-फिरने दिया करो, है ना? अ, जो यहाँ पे जो ट्रिकी के जो डॉक्टर हैं, जिसका जो इलाज करवाती हैंगी मिसेस पॉम्फ्रे, उनका नाम है जेम्स हेरेर। एंड वो है एक वेटरनरी सर्जन, है ना? ब्रिटिश वेटरनरी सर्जन है वो यहाँ पे, और राइटर है, और उन्होंने ही जो है ये स्टोरी लिखी हुई है, ट्रम्प ऑफ सर्जरी। ओके गाइस, ओके। जो है यहाँ पे, और डॉक्टर उनको बहुत बार बोलते हैं कि जो है ट्रिकी है उसको प्रॉपर डाइट दी जाए, उसे ओवर ईटिंग नहीं करवाया जाए। लेकिन मिसेस पॉम्फ्रे जो है वो कभी भी डॉक्टर की बात नहीं सुनती, और हमेशा उसको ओवर ईटिंग करवाती हैगी। और मिसेस पॉम्फ्रे जो है अपने डॉग को कभी भी अकेले नहीं छोड़ती हैगी। उनके डॉग डॉग को वो तुरंत जैसे ही वो बीमार पड़ता है तो डॉक्टर के पास लेकर के जाती है। और डॉक्टर बोलता है कि जो डॉक्टर, क्या नाम है, डॉक्टर हैरियट, जेम्स हैरियट, वो बोलते हैं कि ट्रिकी की जो है अब हमें सर्जरी करने की ज़रूरत है। तो मिसेस जो है पॉम्फ्रे वो बहुत ज़्यादा ही घबरा जाती हैं, और वो यही बोलती हैं कि मैं नहीं चाहती हूँ कि जो ट्रिकी है वो और ज़्यादा बीमार पड़े, और वो अपने डॉग को इस हालत में देख भी नहीं पाती हैं, है ना? और वो क्या करती हैं कि बहुत ज़्यादा ही मतलब सैड हो जाती है जब वो ट्रिकी को ऐसे देखती है। तो जो ट्रिकी को सर्जरी के लिए, ऑपरेशन के लिए लेकर के जा रहे होते हैं, उसे बेड पर लेटा दिया जाता है। और जो है मिसेस पॉम्फ्रे जो है वो डॉग को जो है बिल्कुल भी छोड़ती नहीं है। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। और जब यहाँ पे ट्रिकी की सब सर्जरी हो जाती है, तो जो ट्रिकी जो है वो 2 दिन तक बिल्कुल भी मूव नहीं करता है और कुछ भी नहीं खाता है। लेकिन तीसरे दिन अचानक से जो ट्रिकी होता है अपनी सर्जरी के बाद, वो अचानक से जो है वो ये चाहता है उसको बाहर जाना है, और उसको जो बड़े-बड़े जो डॉग्स हैंगे वहाँ पे उन लोगों के साथ खेलना होता है, जो थर्ड डे आफ्टर सर्जरी ना। तो सर्जरी किस रीज़न की वज़ह से होती है, और वो जो है अदर लोगों के साथ वहाँ पे अदर जो डॉग्स हैं उनके साथ ही जो फूड है वो खाना चाहता है। ट्रिकी जो है ऑपरेशन के बाद जो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस उसमें आता है, वो बाहर जा कर के खेलना चाहता है ना? और उसकी जो मिसेज़ होती है, मिसेज़ पॉम्फ्रे, वो भी समझ जाती है कि ट्रिकी को किस तरह का डाइट अब हम लोगों को देना चाहिए। तो ट्रिकी यहाँ पर जो बीमार होता है वो किस रीज़न्स की वज़ह से देता है कि जो मिसेज़ पॉम्फ्रे है, वो ट्रिकी को बहुत ज़्यादा खाना देती है जो उन्हें नहीं देना चाहिए, और वो इतना ज़्यादा ओवर ईटिंग करता है। वो ट्रिकी अपनी लग्ज़ूरियस लाइफ़ में इतना ज़्यादा परफ़ेक्ट हो जाता है कि वो जो है कोई भी एक्टिविटी करना छोड़ देता है। वो हमेशा एक जगह ही जो आलस की वज़ह से बैठा रहता है वहाँ पे, और उस वज़ह से जो है उसको जो है फैट एक्यूमुलेट होने लगता है उसके जो पूरे बॉडी पे, है ना? बॉडी डाउन देयर, और वो बिल्कुल ऐसा थैले जैसा लगने लग जाता है। और जब वहाँ पे ऐसे लोग जब देखते हैं सड़क पे, और जब डॉक्टर देखते हैं उसे, तो मिसेस पॉम्फ्रे को बोलते हैं कि आपको ट्रिकी को एक स्ट्रिक्ट डाइट पर हमेशा रखना चाहिए। आपको ट्रिकी का ध्यान रखना चाहिए, इतना लाड़-प्यार ट्रिकी के लिए अच्छा नहीं है। जैसे बाकी के कुत्ते सड़क पे खाना खाने के लिए कितना घूमते-फिरते मेहनत करते, वैसे ही ट्रिकी को क्या है कि उसको जब कुछ स्पून फीडिंग मिलता है, उसको सब कुछ बना-बनाया मिल जाता है, तो वो खा लेता है, और घर पर सिर्फ़ क्या करता है अपनी लग्ज़रियस लाइफ़ एन्जॉय करता है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसी रीज़न की वज़ह से जो है ट्रिकी बीमार हुआ है, ऐसा बोलते हैं डॉक्टर हैरियट, है ना? तो सर्जरी जब हो जाती है, तो मिसेज़ जो पॉम्फ्रे है वो इमोशनल रहती है अपने डॉग के लिए बहुत ज़्यादा। जब सर्जरी जब फिनिश हो जाती है, तो जो 2 दिन तक जो है ट्रिकी वो कुछ नहीं बोलता है, और बिल्कुल चुपचाप रहने लग जाता है। फिर तीसरे दिन अचानक से जो है ट्रिकी कुछ एक्शन करने लगता है, और बोलता है कि उसको जो बाहर जाना है, दूसरे कुत्तों के साथ खेलने जाना है, बड़े-बड़े डॉग्स के साथ खेलने जाना है, और उसे वहीं पर उन लोगों के साथ खाना है। और उसको जो है समझ में आ जाता है कि उसे ट्रिकी को भी है ना थोड़ा-सा
सा एक्शन विद से फिजिकल एक्टिविटीज करने की जरूरत होती है, ऐसा ट्रिकी को भी समझ में आ जाता है। और ट्रिकी जो है फिर वो समझ जाता है कि इसको क्या करना है, तो वो बाहर जाने की जिद करता है और फिर डेली खेलने की जिद करता है, बॉल्स खेलने की जिद करता है, बड़े कुत्तों के साथ जो है अपना फूड जो है खुद खोजने की कोशिश करता है। और इसी तरह से जो ये स्टोरी है ये यहीं पे फिनिश होती है। और we have finished poem number one. I would say lesson number one. If you like the videos, then like, share, and subscribe to my channel. If you love the videos, then like the videos and subscribe to the channel. Share it with your friends and comment me down if you have any kind of doubt, and let me know your reviews. A new video will be coming day after tomorrow. That will be from footprints. No, it will be from first flight. Uh, because we have started the chapter from footprints only. So next I will be uploading of the first flight. Okay, you just the playlist will be there of the of both the books individually. Individual playlist will be there. One will be of, I would say, one will be of footprints without feet, and the second one will be the first flight. You just stay tuned to the channel, and new videos are for the coming on the way. You do not forget to like, share, and subscribe to the to the channel. And the playlist for class fourth is available. You can go through it. And okay, do let me in the comment section what do you feel about Mrs. Pomfrey, what she should do and what she should not do with her dog, and how you treat your dog, what all activities you do with your dog. You just let me know in the comment section. I'll be replying you all. Till then, we will be back with more such amazing videos. You till then stay tuned to the channel, like, share, and subscribe to the videos, and share it with your friends. I hope you will be you all will be back to the channel when I'll be uploading new video. Okay, and take care you all. Have a good day, good luck, and peace out.